In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that all of you are in good health. Well, students, I'm your teacher of subject English. Let's start today's lecture. Let me tell you about the day and date. So today is 8th of December 2020 and the day is Tuesday. Okay, today is 8th of December 2020 and the day is Tuesday. Here you go, you can see here it's unit 10 Adil and gold chain. It's a unit 10 Adil and gold chain. The topic is A part question number 2 which is complete the sentences कि हमने sentence को complete करना है, and C part question 1 which is apostrophe. Okay, कि किस तरीके से लगाना है. First of all, let me tell you about writing a complete sentence. What is the meaning of complete the sentences? कि इसका meaning क्या है? Complete the sentences, which is a part question number 2 given on the page 87 of your textbook English. So complete the sentence. What is the meaning of complete the sentence? You can see here, it's in orange form. It's written sentence. S means subject. ऑलवेज़ इंक्लूड अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमेशा एक इंक्लूड करता है, शामिल होता है एक सब्जेक्ट पे. ई मीनिंग एवरी वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, हर वर्ड इम्पोर्टेंट है, अहम है. एन मीनिंग नो, डोंट फॉरगेट द पंचुएशन. पंचुएशन को नहीं भूलना है, जिसमें कोमा आता है, फुल स्टॉप आता है, अपोस्ट्रोफ आता है. ठीक है. टी मीनिंग थॉट. राइट अ कंप्लीट थॉट, एक पूरी सोच की सेंटेंस लिखना है. ई मीनिंग एवरी वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, हर वर्ड सही स्पेलिंग्स लिखी हों. ठीक है. एंड मीनिंग नो सेंटेंसेस विदाउट अ वर्ब, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं होता है, डूइंग वर्ड्स के बगैर. सी मीनिंग कैपिटल लेटर इज़ मस्ट, कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए. ई मीनिंग एडिड बिफोर यू आर फिनिश्ड, आप इसको एडिट ज़रूर कर लें इससे पहले कि आपका सेंटेंस ख़त्म हो. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर complete the sentence. Sentence को पूरा brief कर दिया. What is the meaning of sentence? S means include a subject. E means word is important. N means don't forget to put the punctuation. T means complete thought. E means every word is spelled correctly, spelling सही होना चाहिए. N mean कि कोई verb के बगैर नहीं होना चाहिए, capital letter होना चाहिए. C mean added before you are finished. Okay, here you go. If you open your books, textbook on page 87, so bring your pencils with you. Complete the following sentences. अब आपके पास sentence है, there are some 3 sentences in front of you, but these 3 sentences are incomplete. You have to complete the sentences. His mother was going dash, उसकी mother जा रही थी. अब देखें, there is a only subject which is his mother. ठीक है. mother is a subject, was going, it's a verb. was going जा रही थी, किधर जा रही थी. ठीक है. सो हिज मदर, आपको ये कंप्लीट करना है सेंटेंस बाय पुटिंग द ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट डालना है कि किधर जा रही थी. सो हिज मदर वॉज गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट यू कैन सी हियर द 2 men, कि जो 2 आदमी हैं डैश, द 2 men डैश, यानी कि जो 2 आदमी हैं उन्होंने क्या किया था. इफ़ यू रिकॉल द स्टोरी, तो आपको पता चलेगा कि इन द आदिल एंड द गोल्ड चेन में द 2 men ग्रैब्ड द गोल्ड चेन. ठीक है. उन्होंने छीन ली थी. द 2 men स्टोल द गोल्ड चेन, उन्होंने स्नैच कर ली थी गोल्ड चेन को. दे स्टार्टेड टू रन अवे. ठीक है. सो द आंसर इज़ द 2 men ग्रैब्ड द गोल्ड चेन. उन्होंने ग्रैब कर ली थी, गोल्ड चेन को पकड़ लिया था. ठीक है. मीन्स छीन लिया था, गोल्ड चेन को उन्होंने छीन लिया था. ओके. GRABBED स्पेलिंग्स इसके ये होते हैं. GR, इट्स नॉट GRR, GRABBED. नेक्स्ट इज़ I'll कैच, मैं पकड़ लूँगा, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा. I'll कैच डैश. I'll कैच अप विद मम इन अ मिनट और 2, यानी कि उसने कहा कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट में अपनी मम्मा को ढूंढ लूँगा. ठीक है. So the answers are given like this. To the market. A answer is to the market. B answer is grabbed the gold chain. C answer is up with mom in a minute or 2. Next is the apostrophe.
व्हाट इज़ apostrophe? apostrophe आपने यू मस्ट नो apostrophe होता है जो छोटा सा कोमा होता है लेकिन ऊपर की साइड पे लिखा होता है एस के साथ, विच शो द पॉजिटिवनेस, जो आपको उसकी मलकियत शो कर रहा होता है, ठीक है, नाउन की मलकियत. सो लेट मी टेल यू a bit about apostrophe. An apostrophe is a small punctuation mark. एक छोटा सा punctuation mark होता है. If you see in the bracket there is apostrophe, छोटा सा कोमा है, placed after a noun, जो कि हम नाउन के बाद कोमा देते हैं टू शो, ये जाहिर करने के लिए डैट द नाउन ऑन्स समथिंग, कि जो नाउन है ना, अब नाउन क्या है, नाउन इज़ नेम ऑफ अ प्लेस पर समथिंग. अगर कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, तो उसकी वो मलकियत है. The apostrophe will always be placed either before or after an s at the end. यानी कि अब देखो वही बात, कि apostrophe जो है वो हमेशा आता है before पहले और after an s के बाद, ठीक है, at the end of the noun owner, noun की ऑनर के बाद, कि नाउन में क्या है, अगर बॉय है, अली है, कोई चीज़ है तो क्या है, ठीक है. ऑलवेज द नाउन ओनर, हमेशा नाउन का जो ओनर है विल बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाता है यूजुअली इमीडिएटली, आमतौर पे बहुत ज़्यादा, बाय द थिंग इट ओन्स, कि जो चीज़ है, जिस चीज़ के साथ हमने एस लगा दिया है वो उसकी अपनी है, ठीक है. तो apostrophe का मतलब होता है द थिंग विच वी हैव, यानी कि किसी की मलकियत है, आई थिंक विच द नाउन हैज़ ओन, ओके, उसकी पॉजिटिवनेस को शो करता है. apostrophe फॉर पॉजिटिव्स, apostrophe यानी कि उसकी मलकियत है. एमीज बैलेट क्लास, अब देखें एमी के बाद, एमी इज़ द नाउन, उसके बाद apostrophe है, एस है, बैले क्लास. एमीज बैले क्लास, एमी की बैले क्लास, डांस क्लास. द पेरेंट्स बेडरूम, अब पेरेंट्स नाउन है, उसके बाद एस पहले है और उसके बाद छोटा सा कोम है. पेरेंट्स बेडरूम, पेरेंट्स का बेडरूम. द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा, ठीक है. apostrophe फॉर कंट्रैक्शन, इसको हम कंट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. कंट्रैक्शन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे लिखा हुआ है दे प्लस हैव. अब इसको हमने स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सो वी विल यूज़ apostrophe एज ए कंट्रैक्शन. एक तो पॉजिटिवनेस के लिए हो गया, सेकंड अब कंट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है. दे हैव, उसको जब हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो दे, इट वुड बी देव. आर प्लस नॉट, it would be aren't. They plus will, it would be they'll, okay. So we can use apostrophe from two ways to show the positiveness and to show the contraction, okay students. Here you go, if you come to the page number 88 of your book, textbook, there is a C part, apostrophe, okay. चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करना है. एग्जाम्पल इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, द बाइक ऑफ आदिल की बाइक. अब देखें ये उसकी मलकियत शो कर रहा है, ठीक है, पोजीशन शो कर रहा है कि द बाइक ऑफ आदिल की बाइक. सो आंसर इज़ आदिल्स बाइक. आदिल इज़ द नाउन, हम नाउन को पहले लिख लेंगे एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद apostrophe एंड विल पुट द स्मॉल एस एज वेल, आदिल्स बाइक, आदिल की बाइक. नाउ यू कैन सी द स्टेटमेंट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, द मम ऑफ आदिल की मॉम, तो क्या आएगा, आदिल्स मॉम, आदिल्स मॉम, ठीक है. मॉम ऑफ आदिल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, आदिल्स मॉम, ओके. एंड नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ द बाइक, बाइक का व्हील, तो आएगा बाइक्स व्हील. द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर, हिज मदर्स गोल्ड चेन, उसकी मम्मा की गोल्ड की चेन. द हाउस ऑफ द रॉबर्स हाउस, या द रॉबर्स हाउस, ठीक है, द रॉबर्स हाउस. फ्रॉम दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर 2 questions. Here you go, the answer is in front of you, Adil's mom, the bike's wheel, his mother's gold chain, the robber's house. So you have to put the answer like this, okay, which is given in front of you. Adil's mom, the bike's wheel, यानी बाइक का wheel, his mother's gold chain, उसकी मदर की gold chain, and the robber's house, और चोरों का घर, ठीक है, robber's house. That's all for today's lecture. Homework is that do A part question number 2 and C part the apostrophe, okay. Take care of yourself. I hope that you enjoyed it and you have cleared the concept of apostrophe and the sentence. Complete the sentence, okay. Take care of yourself. Allah Hafiz.